Hello and good morning, my dear students. The summary of the last class, what we started with, definition of operational amplifier, or we seen the answer for what is an operational amplifier. Okay, and we seen that is a DC coupled high gain voltage amplifier. Then we seen the block diagram of operational amplifier, and it consists of how many blocks? 4 blocks or 4 stages. One stage is input differential amplifier. Second stage is an intermediate differential amplifier which have multi-stage amplifier or cascaded amplifiers, and third stage is a buffer amplifier or emitter follower, and fourth stage is a level shifter, that is push pull amplifier, right? And exactly after that we send the symbol, try to understand the operational amplifier symbol. So operational amplifier have 5 terminals minimum. How many terminals it have? 5 terminals minimum it had. So what are the roles of that 5 terminals? We are going to see next. In that, one is inverting, another is non-inverting, third is output, fourth is positive supply, fifth is negative supply. Okay, and that is here the diagram, circuit symbol of operational amplifier diagram is given here, right? And in that we know output is what, we know positive supply terminal, negative supply terminal है ना, वो तो हमें पता है of course. Then what is inverting input terminal and non-inverting input terminal? See, if what the input you apply, okay, or in which phase the input you applied, like this, okay, first crust and then trough, then output if you are getting first trough then crust, means the phase is shifted by 180 degree, then the terminal is inverting input terminal. What the input you apply? Crust followed by the trough, right? The same you are getting, crust followed by the trough, then there is no shifting or phase is same as that of input, then that input terminal is non-inverting input terminal, right? After that, now today we are going to see, or we are going to study the characteristics of operational amplifiers. Okay, so here see operational, but what it is? Amplifier, right? So the 3 characteristics I discussed already with the start of this 6th semester, this 4th unit, right? What I had told, what should be the gain? Gain should be very high for amplifier. Note this, huh? Next, what I said, the input impedance of the amplifier should be very high, right? Then third thing I explained in the first class is that output impedance of any amplifier should be as low as possible. See whether that characteristics are there or not in this operational amplifier. Okay, then see, when operational, first characteristics we are going to see open loop gain. What is mean by the open? When the output of amplifier is not given to the connected to the input, then that loop gain or that voltage gain is called open loop gain or open loop condition, है ना? फिर से एक बार, अगर आउटपुट इनपुट में कनेक्टेड नहीं है ना, तो हम बोलेंगे ओपन लूप कंडीशन, और है ना, तब गेन मिलेगा ओपन लूप गेन, चाहे वो वोल्टेज हो चाहे वो करंट हो. तो आउटपुट को हम इनपुट में देते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? फीडबैक. आउटपुट को हम इनपुट में देंगे, उसे हम क्या कहेंगे? फीडबैक. अगर मैंने अभी क्लास लिया है, वो क्लास अच्छा है या बुरा है, आप जो बोलेंगे, ठीक है, मैंने क्या दिया? इनपुट, आपने सुना, ठीक है, या वो आउटपुट हुआ, और आपने मुझे उसको बताया, ये क्या हुआ? फीडबैक हुआ, राइट? आउटपुट को आपने मुझे
इनपुट पे कनेक्ट किया, राइट. सो ओपन लूप वोल्टेज गेन is, or any gain is, output by input, right? So output is V0, you know, and input is what? Difference input और differential input voltage. क्या? इन दोनों के बीच का डिफरेंस. ओके. सो आइडियली अगर हम यहाँ पे 5 वोल्ट अप्लाई करते हैं, यहाँ पे 5 वोल्ट अप्लाई करते हैं, तो 5 वोल्ट 5 वोल्ट, राइट. आउटपुट में जो भी मिलना है, समझो +10 मिलेगा नॉन इन्वर्टिंग की वजह से, -10 मिलेगा इन्वर्टिंग की वजह से, तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा? 0. sorry, एक मिनट, मिस्टेक. सी हियर व्हाट आई वांट टू से इज, इनपुट अगर 5 वोल्ट हमने दिया इन्वर्टिंग पे, ठीक है, वो -5 हो जाएगा, और नॉन इन्वर्टिंग पे दिया +5, तो इनपुट हमारा VD क्या हो जाएगा? 0. ठीक है. सो VD अगर 0 हो जाता है तो देखिए बेटा, हमारा VD यहाँ 0 हुआ, सो V0/0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 क्या हुआ? इन्फिनिटी. दैट्स वाई ओपन लूप गेन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज इन्फिनिटी आइडियली. प्रैक्टिकली ये वैल्यू 0 नहीं होती, ये हमने पढ़ा है ना, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो पढ़ते समय, राइट. सो प्रैक्टिकली वो 0 नहीं होता, तो हमें आंसर क्या मिलता है? 0 नहीं, स्मॉल वैल्यू होने पे यहाँ पे हाई मिलेगा. सो प्रैक्टिकली हाई, आइडियली इन्फिनिटी. ओपन लूप वोल्टेज गेन, ओपन लूप वोल्टेज गेन आइडियली इन्फिनिटी, प्रैक्टिकली वेरी हाई. सो एम्पलीफायर का जो कैरेक्टर है पहला, वो फॉलो हो रहा है. वेरी गुड. देन नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं. अब यहाँ आइए, क्या है? सेकेंड वन, इनपुट इम्पिडेंस. तो अभी मैंने डिस्कस किया आपसे कि इनपुट इम्पिडेंस कैसे होना चाहिए, एम्पलीफायर का वेरी हाई होना चाहिए, है ना, एम्पलीफायर के लिए. नॉट आई एम टेलिंग अबाउट ऑपरेशनल एम्पलीफायर. नाउ ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए क्या होता है? आइडियली इट इज इन्फिनिटी. ऑफ कोर्स आइडियल चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो प्रैक्टिकली दैट इनपुट इम्पिडेंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर शुड बी वेरी हाई, राइट. देन आउटपुट इम्पिडेंस के बारे में मैंने क्या बोला? एज लो एज पॉसिबल, है ना. किसका? एम्पलीफायर कोई भी हो, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का भी एज लो एज पॉसिबल होना चाहिए. और आइडियली कितना है देखिए, तो आइडियली इट इज 0. Output impedance of operational amplifier is 0. Then after that, what next is? That fourth one is CMRR, and CMRR is nothing but the ratio of differential mode gain to common mode gain. और हमें पता है, या आपको पता हो, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग, जब सेम हम अप्लाई करेंगे इनपुट्स, राइट, तो कॉमन मोड गेन डिफरेंस ये क्या आ जाएगा? 0. कॉमन मोड गेन क्या होगा? 0. अगर कॉमन मोड गेन 0 है, कॉमन मोड गेन कितना है? 0 है. अगर ऐसा है तो डिनोमिनेटर 0 हुआ. एनीथिंग बाय 0 इज infinity. So common mode rejection ratio for an ideal amplifier is 0, right? Then now next is
इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। तो आपको समझना होगा कि पहले ऑफसेट वोल्टेज क्या है। इफ both the input terminals of any practical amplifier are grounded, दोनों इनपुट टर्मिनल्स कहाँ है, ग्राउंड को कनेक्टेड है, जीरो वोल्टेज, देन इट शोज अ स्मॉल नॉन जीरो आउटपुट वोल्टेज। होना चाहिए क्या? नहीं, वो प्रैक्टिकली होगा, आइडियली नहीं होना चाहिए। देन टू मेक दिस आउटपुट वोल्टेज जीरो, to make this output voltage ज़ीरो, दोनों इनपुट ज़ीरो पे देने के बाद आउटपुट वोल्टेज ज़ीरो रहना चाहिए आइडियली, पर होता नहीं है। तो उसे ज़ीरो करने के लिए हम स्मॉल मिली वोल्ट में वोल्टेज देंगे। कहाँ पे? टू द इनपुट टर्मिनल्स। देन दिस डीसी वोल्टेज which makes the output zero is called offset voltage, और IC 741 के लिए 2 मिली वोल्ट्स है। ठीक है, तो समझ गए आप। नाउ इनपुट बायस करंट, what it is? It is the average value of current flowing through each input terminal when op-amp is balanced. So op-amp जब बैलेंस्ड होगा तब क्या होगा बेटा? इन उनका एवरेज इनपुट के करंट्स का मतलब इनपुट बायस करंट होगा। इनपुट बायस करंट इज 80 नैनो एम्पियर फॉर IC 741, जो हम प्रैक्टिकल में यूज़ करते हैं। ओके, देन नाउ इनपुट ऑफसेट करंट क्या है? ये difference between input offset current is difference between magnitude of two input bias currents when the output is 0 volt. It is called input offset current. मतलब आउटपुट करंट क्या बोला? आउटपुट करंट ज़ीरो रहने के लिए या आउटपुट वोल्टेज ज़ीरो रहने के लिए जो इनपुट टर्मिनल्स के बीच का करंट फ्लो है उसे हम क्या बोलेंगे? इनपुट ऑफसेट करंट। नाउ द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन, दैट इज स्लीव रेट। स्लीव रेट इज the rate of change of output with time. Rate of change of what? Output with respect to time, that is dV by dt. V is output voltage, right? That's why we've written V0. So dV0 by dt is sleeve rate SR. Okay, and that should be what? Maximum, right? So what should be the ideal value of sleeve rate for op-amp? is infinity. क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, तो इनफाइनाइट होना चाहिए तो उसका हम फॉर्मूला देखते हैं। तो क्यों होना चाहिए ये भी हमारे ध्यान में आ जाएगा। तो आपको पता हो शायद, तो मैं बता दूं कि हम क्या लिखते हैं जब भी लिखते हैं साइनोसॉइडल वेव के लिए इक्वेशन। ठीक है, तो क्या लिखते हैं? वट एवर इट इज x इज इक्वल टू A0 साइन ओमेगा t और
जो अगर दूसरा हम साइनोसॉइडल वेव लिखते हैं तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिए, है ना, मैक्सिमा से स्टार्ट हो रहा है, राइट। तब हम साइनोसॉइडल लिखते हैं वेव ए इज इक्वल्स टू A0 मीन्स एम्पलीट्यूड, है ना, ये वाला डिस्टेंस एम्पलीट्यूड A0, राइट, इज इक्वल्स टू कॉस ओमेगा टी, है ना। तो आपको याद है। तो उसी के साथ ही हम स्टार्ट करते हैं स्लीव रेट का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो स्लीव रेट का आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्लेनेशन साइनोसॉइडल वेव में V0 इज इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा टी। अभी मैंने A0 लिखा, क्या था, मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन हमारा आउटपुट वोल्टेज V0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर से यहाँ मैक्सिमम वैल्यू को 0 से रिप्रेजेंट करेंगे तो कन्फ्यूजन होगा, इसलिए हम VM लिख रहे हैं, ठीक है। V0 इज इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा टी। सो स्लीव रेट का फॉर्मूला हमें पता है, क्या है, dV/dt। सो डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके। सो देन VM is constant, so differentiation of sine is cos, okay, और ओमेगा का टी का डिफ्रेंशिएशन ओमेगा, ओके। सो इसलिए VM ओमेगा कॉस ओमेगा टी, है ना। तो अभी बचा क्या है, dV बाय और dV0/dt इज इक्वल्स टू VM इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये हमको मिला, राइट। देन अब कॉस ओमेगा टी की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब उसकी वैल्यू 1 होगी। मैक्सिमम वैल्यू के लिए ओमेगा कॉस ओमेगा टी 1 के लिए हमें dV/dt भी मैक्सिमम मिलेगा, इसलिए हमने वहाँ मैक्स लिखा है। dV0/dt मैक्स इज इक्वल्स टू VM इंटू ओमेगा, और ओमेगा क्या है बेटा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, लीनियर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में ओमेगा इज इक्वल्स टू 2πf। तो यहाँ हमने ओमेगा की वैल्यू लिखी 2πf, मैक्सिमम के लिए ले रहे हैं इसलिए f मैक्स होगा, राइट। देन फिर उसके बाद क्या चीज़, स्लीव रेट का फॉर्मूला में मिल गया, क्या, स्लीव रेट इज इक्वल्स टू 2πf मैक्स इंटू VM। अभी देखिए इसे हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, माइक्रो सेकेंड्स में लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो माइक्रो सेकेंड्स में लिखना है तो देखिए SR इज इक्वल टू, ठीक है, SR इज इक्वल टू क्या, वहाँ नहीं लिखता हूँ मैं, थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, एक मिनट, हाँ कहाँ लिखूँ, यहाँ SR इज इक्वल टू 2πf, मैं मैक्स नहीं लिख रहा हूँ, समझ जाइएगा, है तो M। तो अगर ये क्या है, वोल्ट पर सेकेंड में है ना। देन फिर से यहाँ लिखता हूँ मैं, या एक ब्लैंक पेज अभी नहीं है, ठीक। तो SR इज इक्वल्स टू क्या, 2πf मैक्स इंटू V, और V मैक्स, आंसर इसमें वोल्ट पर सेकेंड में है, ये हुआ आंसर, ठीक है। अब देखिए 2πf और V मैक्स एज इट इज़ इंटू V भी एज इट इज़ बाय 10⁻6 इंटू 10⁻⁻6 अगर मैं करता हूँ, ठीक है, तो कुछ चेंज होगा क्या, नहीं, इंटू S, जगह कम पड़ रही है, राइट। तो फिर से एक बार मैं लिखता हूँ, देखिए बेटा यहाँ डिनोमिनेटर में V/,
second is equals to is equal to V by voltage by 10 to the power 6 into 10 to the power minus 6, ठीक है, सेकेंड एज इट इज, ठीक है, 10 to the power 6 इंटू 10 to the power minus 6 कितना 1, तो V by S हुआ, हाँ हुआ, आपको आप एग्री यस, दैट इज इक्वल्स टू V by 10 to the power 6 लिख रहा हूँ और माइनस 6 को मैं माइक्रो लिख रहा हूँ इंटू सेकेंड, तो मुझे क्या मिला, V बाय एस की जगह पे V बाय 10 to the power 6 माइक्रो सेकेंड, राइट। तो ये अगर हम पुट करते हैं यहाँ पे, चल छोड़ो मैं अभी तो यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या हुआ, V बाय सेकेंड है, V बाय माइक्रो सेकेंड में लिए तो 10 to the power 6 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, अभी देखा, हाँ। सो जनरली स्लीव रेट क्या वोल्टेज बाय माइक्रो सेकेंड्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर एफ इज इनपुट फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्स, Vm इज पीक वैल्यू एम्पलीट्यूड, Vm इज पीक वैल्यू और एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो आइडियली ये क्या होना चाहिए, ऑफ कोर्स इन्फिनिटी होना चाहिए, ठीक है। देन तो अभी तक हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल ऑप एम्प पढ़े, तो शॉर्ट में हम उन्हें एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो पहला क्या पढ़ा था हमने, कैरेक्टर आउटपुट लूप गेन और गेन ऑफ ऑप एम्प व्हेन इट इज ओपन इज हाउ मच, इन्फिनिटी। इनपुट इम्पीडेंस कितना होना चाहिए, इन्फिनिटी। आउटपुट इम्पीडेंस कितना होना चाहिए, 0। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो कितना होना चाहिए, इन्फिनिटी। SR स्लीव रेट कितना होना चाहिए, इन्फिनिटी। बैंडविड्थ कितना होना चाहिए, इन्फिनिटी। यहाँ हमने डिस्कस नहीं किया था, है ना, बैंडविड्थ। देन और क्या, ऑफसेट वोल्टेज कितना होना चाहिए, इन्फिनिटी, सॉरी 0, ठीक है। तो ये कैरेक्टर है, दो सिर्फ 0 होंगे, कौन सा, एक ऑफसेट वोल्टेज और दूसरा आउटपुट इम्पीडेंस, और बाकी सब पे क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी होना चाहिए। मतलब इनपुट इम्पीडेंस आउटपुट इम्पीडेंस और ऑफसेट वोल्टेज ये दोनों लो होने चाहिए, बाकी सब कौन से, आउटपुट लूप की वोल्टेज गेन, ओपन लूप गेन और इनपुट इम्पीडेंस और CMRR स्लीव रेट बैंडविड्थ, ये सारे क्या होने चाहिए, इन्फिनिटी हाई होने चाहिए प्रैक्टिकली और आइडियली इन्फिनिटी। और आउटपुट इम्पीडेंस और ऑफसेट वोल्टेज 0 होने चाहिए आइडियली और लो होने चाहिए प्रैक्टिकली, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग द क्लास केयरफुली, बाय बाय फॉर नाउ।